Good morning, dear children. Let's begin our chapter number 9, part 2. The topic is dispersal of seeds. Dispersal means when the seed gets scattered. Seed कब scatter होता है? When the fruit get ripened. Fruits जब पक जाते हैं, they fall down and burst open. And the seed inside the fruit get scattered all over. These scattered seeds grow into new plant. Dear children, scattering is necessary because if all baby plant grow near the parent plant, they will not be able to survive because they don't get enough sunlight, air, water and space that is necessary for survival of a plant. So scattering is very much important. The process of scattering or spreading of seed to different places is known as dispersal of seeds. Basically, there are 4 important agents for seed dispersal. First one is wind, then water, then animals and bursting of fruits. Let's have a look. Dispersal of seed by wind. Some fruits having the seeds that are light in weight and have small tufts. You can see in the picture, small tufts are there. They used to float in the air और इनको एयर अपने से उस प्लांट से, उस फ्लावर से दूर ले जाता है, उस फ्रूट से एयर उड़ा के ले जाता है और ये दूर जाके अपना एक नया प्लांट ग्रो कर लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है, दैट इज़ डेंडिलियन एंड कॉटन ऑल्सो हैव टफ्स इन ऑफ हेयर. मैपल एंड sycamore seeds have wings that help them to float. So through wind the seed get dispersed away and reproduce a new plant. Secondly, through water. You can see in the picture the coconut floats through water and started producing a new plant. These have special structure, means structure of the coconut. It is light in weight and used to float through water. Water के साथ ये बहने लगता है. Like lotus leaves also, lotus seeds also used to float. Water lily, hydrilla, coconut. This all used to float and they germinate at some other places. Okay. Animals and birds eat fruits. They used to eat fruits. The undigested seeds of this fruit, they used to fly away from one place to another and disperse the fruits there also. Some undigested seeds of these fruits come out and with their feces and the seed gets dispersed. इस तरह से ये कैरी करते हैं अपने मुंह में और दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और वहाँ पे ये रिलीज़ कर देते हैं सीड्स को और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं. समटाइम्स क्या होता है, एनिमल के फैदर में या फिर एनिमल की बॉडी में भी कुछ सीड्स के पार्टिकल्स लग जाते हैं और वो दूसरी जगह कैरी होके वहाँ पे एक नया प्लांट बना लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल टाइगर नेल, थैंसियम, स्पेयर ग्रास एट्सेट्रा. Likewise, some fruits get burst open हो जाते हैं कुछ fruits और जब वो सूख जाते हैं they used to burst open और explosion जब होता है तो दूर दूर तक के छिटक जाते हैं, ये स्कैटर हो जाते हैं सीड्स.
लाइक कैस्टर, पी, लेकिन ये कब जर्मिनेट होते हैं? अंडर सम फेवरेबल conditions only they used to germinate. Let's come to our next topic, reproduction through other parts of plants. Dear children, I have already told you the reproduction of plant is done through various parts of its of plant. Okay, some plants grow through दिस स्टेम कटिंग. रोजेस, आप रोजेस देख रहे हैं, इसमें ये स्टेम के थ्रू कट करके इसको दूसरी जगह लगाया जा सकता है. सिमिलरली हिबिस्कस, मनी प्लांट, शुगर केन, रोज़, ये सारे प्लांट क्या होते हैं? स्टेम कटिंग के थ्रू दूसरी जगह फिर से रिप्रोड्यूस हो सकते हैं. ट्यूबर्स मीन्स आपने बर्ड्स या ट्यूबर्स देखा होगा पोटैटो को आप रख देंगे, उसके आइज़ निकल आती है, बर्ड्स निकल आती है. अगर उसको हम लगा देंगे तो वो एक नया प्लांट ग्रो कर लेंगे. बर्ड्स एंड बल्ब, रेडिश हो गए, जिंजर हो गए, ऑनियन हो गए, गार्लिक हो गया, ये सारे काय से बल्ब के थ्रू नया प्लांट ग्रो करते हैं. अंडरग्राउंड स्टेम स्वेलन, ये देखिए आप, इसमें इस पिक्चर में दिखा रहा है किस तरह से अनियन या गार्लिक बल्ब के फॉर्म में अंदर की तरफ रूट उसके ओपन होते हैं और बाहर की तरफ उसका शूट दिखाई देने लगता है. सिमिलरली इन पोटैटो बर्ड्स इज़ देयर. बर्ड्स का जो उस बर्ड्स को क्या कहते हैं? आई कहते हैं, और वो ओपन हो जाता है और नीचे की तरफ उसके रूट्स बनने लगते हैं और वो अंडरग्राउंड ग्रो करता है. जिंजर ऑल्सो यू कैन सी. नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन थ्रू फॉर्न्स या मोजेस होते हैं ऑर्गेनिज्म में, लाइक मशरूम्स. इनके फ्रूट या फ्लावर्स नहीं होते. आप देख सकते हैं इस पिक्चर में स्मॉल पोर्स आर देयर ऑन द लीव्स. So they used to reproduce through spores in their body and give rise to a new plant. You can see in this picture mushroom को फ्रूट्स या फ्लावर्स नहीं होते. वो अपने फर्म्स के थ्रू, मोजेस के थ्रू दे यूज टू बड, उनके बडिंग निकलती है और वो नया प्लांट ग्रो करते हैं. टी प्लांटेशन, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टी प्लांटेशन. जैसे कि आप सबको पता है, टी इज़ वेरी पॉपुलर बेवरेज ऑफ इंडिया. टी प्लांटेशन इज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना. इट इज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया. टी को कैसा क्लाइमेट चाहिए रहता है? ह्यूमिड और हॉट क्लाइमेट चाहिए रहता है, और कंटिन्यूसली सनशाइन विथ एडिक्वेट रेनफॉल इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ टी. हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट, मोस्टली आसाम, दार्जिलिंग में ट्री प्लांटेशन होता है. ये जो प्लांटेशन है ये हिल स्लोप्स पे होता है. हिमाचल प्रदेश में इट इज़ इन अबंडेंट. नीलगिरी हिल्स साउथ इंडिया में और कांगड़ा हिल्स हिमाचल में इसकी ग्रोथ है. ये प्लांटेशन किया जाता है. एंड हियर एंड्स योर चैप्टर. हैव अ ग्रेट डे.